السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ابھی چمنی بازار کی سرزمین سے آنا ہوا، واپسی پر جامعہ شاہ صاحب للبنات کا یہ باہری منظر ہے، یہ بیرونی منظر ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلیے آپ لوگوں کو میں اندرونی منظر کی طرف لے چل رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر کام چل رہا ہے اور ماشاء اللہ جب میں یہاں پر آیا، جامعہ شاہ صاحب للبنات میں جب آیا تو یہاں کی تعلیم، یہاں کا نظام جو میں نے دیکھا، میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ تو آئیے احباب، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ ابھی جامعہ شاہ صاحب للبنات کے اندرونی منظر پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو آئیے یہاں کے جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت علامہ و مولانا آصف ارشد رشیدی صاحب یہاں پر شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ آئیے ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں جامعہ کے تعلق سے۔ حضرت آپ بتائیں کہ جامعہ شاہ صاحب للبنات میں تعلیم کیسی ہو رہی ہے، نظام کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ شاہ صاحب فاطمہ نگر منڈل میں فضیلت تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ ابھی فضیلت تک کی بچیاں ابھی نہیں ہیں، اور ہمارے بانی و مبانی و محتمم حضرت علامہ مفتی معصوم ارشد صاحب کی کاوش رنگ لائی ہے، اور حضرت کی خواہش ہے کہ فضیلت تک کی تعلیم کا انتظام آئندہ سال سے کیا جائے۔ دل استیاب، لہذا یہ ہے کہ اپنا ایک ارادہ یہ ہے کہ تعلیمی معیار اونچا ہونا چاہیے، اور اساتذہ کرام اور معلم و معلمات بھی جو ہے پابندی کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کرائیں، اور طلباء اور طالبات بھی جو ہے پابندی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جامعہ شاہ صاحب للبنات فاطمہ نگر منڈل میں حضرت علامہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان جاری و ساری ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے۔ ماشاء اللہ آپ کی گفتگو، آپ کی بات سن کر بہت دل خوش ہوا۔ آئیے اب بانی و مبانی خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی معصوم ارشد مصباحی رشیدی مد ظلہ العالی سے جامعہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو حضرت آپ کچھ جامعہ کے تعلق سے بتائیں کہ مدرسہ کب سے آپ یہاں پر چالو کیے اور کس کٹھنائی کا آپ نے سامنا کیا، کیسی کیسی دقتیں سامنے آئی، کچھ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی تھی تقریباً 2019 میں، لیکن اس وقت یہ ادارہ ایک مکتب کی شکل میں تھا اور بچیاں آتی تھی، پڑھ کے چلی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت علامہ مولانا فرید ارشد منڈل کے رہنے والے ہیں، وہ بحیثیت مدرس منتخب تھے اور بھی پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ لوگوں نے ساتھ دیا اور بھرپور مدد کی۔ آپ حضرات کی تعاون سے، مدد سے جو ہے ادارہ آج یہاں اس منزل تک پہنچا ہے کہ سال آئندہ انشاءاللہ فضیلت کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا مکمل طور پر۔ اور یہ تو خیر ٹھگی شوی بات نہیں ہے کہ بنیادی چیز چھوٹی ہوتی ہے شروعاتی دور میں،
छोटी होती है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन इस मंज़िल तक आने के लिए वाक़ई बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और लोग तो सिर्फ़ कामयाबी को देखते हैं, जब कामयाब हो जाइएगा तो वो दूसरों को देखेगा। लेकिन इस कामयाबी की मंज़िल को तय करने के लिए पाँव में कितने आबले पड़े हैं, वो किसी को मालूम नहीं। जी। लेकिन बहरकफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम लिया, और अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तालीमी इंतज़ाम भी माक़ूल है, और बच्चों के रहने-सहने, खाने-पीने का भी माक़ूल इंतज़ाम है। और अभी हमारी कोशिश है कि सबसे ज़्यादा तालीम पर फ़ोकस किया जाए इदारे को, और बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ फ़ज़ीलत की तालीम तमाम बच्चों को दी जाए। माशाअल्लाह। तो हुज़ूर, आपसे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अभी कुछ अहबाब जो हमारे नाज़रीन जो आईडी को देखेंगे, जो वीडियो को देखेंगे, आप अपने मदरसे के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से कुछ पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि शुरुआती जो तालीम होती है, जैसा कि नूरानी कायदा ही ले लीजिए, जी, तो शुरुआती तालीम बहुत मज़बूती के साथ होनी चाहिए, जी। और बुनियादी तालीम अच्छी खासी होनी चाहिए। हुँ। अगर बुनियाद आपका मज़बूत रहेगा, और मखरज की अदायगी के साथ या नूरानी कायदा इजरा के साथ पढ़ा दिया जाए, तो आगे चलकर बच्चों के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हम सबको चाहिए, ख़ासकर निस्वां के लिए, शुरुआती दौर में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है नूरानी कायदा वगैरह, तो इसमें काफ़ी तवज्जो की दरकार है। जी। तो हम सबको चाहिए कि किताब इजरा के साथ हर मदरसे में पढ़ाई जाए। वही किताब नहीं, आपके लिए जो भी किताब हो, लेकिन मखरज तलफ़्फ़ुज़ के साथ। जी, जी। माशाअल्लाह। तो अहबाब, अभी ये थे बानी व मुबानी खलीफ़ा शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मासूम अरशद मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली। आप उनकी ज़बान से मदरसे के ताल्लुक से समाअत कर रहे थे। अभी मैं आपको बिल्कुल अपनी आंखों देखा हाल कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये तो बीरूनी मंजर मैंने आप लोगों को दिखाया, आप अंदरूनी मंजर आप लोग देखें। माशाअल्लाह, रहने सहने का इंतज़ाम बच्चों का बहुत ज़्यादा उम्दा है, बहुत बढ़िया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ तालीम ले रही है, और यहाँ पर माशाअल्लाह गार्डन की शक्ल में जो बच्चियों के रहने का इंतज़ाम है, माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बनाया है। तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि आप जो भी अहबाब मेरी वीडियो को देखेंगे, आप अपने अपने बच्चों को जामिया शाह साहब लिल बनात में भेजने की कोशिश करें, दाखिला करवाएं। और आइए, मैं ये तो मेरी ज़बानी बात थी, आइए अब मैं मेरे बिरादर असगर हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रशीद साहब की ज़बानी आप लोग कुछ समाअत करें, क्योंकि उन्होंने भी जामिया शाह साहब लिल बनात को अपनी आँखों से देखा। आपको देख के कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। मैं तो इससे पहले आया था, लेकिन बाहर से ही, क्योंकि मदरसा जो है ये निस्वां है, इसलिए अंदर आने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ था, और आज उलमा किराम के साथ हाजिर आया हूँ यहाँ अंदरूनी मंजर देखने के लिए। तो माशाअल्लाह देखा, काफ़ी खुशी हो रही है। और इमारत जो है माशाअल्लाह 2 मंजिला, इस साइड में 2 मंजिला है, और इस साइड 1 मंजिला है इस वक्त। और माशाअल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त जो है इस इदारे में करीबन 300 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। बड़ी माशाअल्लाह। खुशी की बात जी, है। जी, जी। इसमें और कोई मेरे हिसाब से इस वक्त 22 में ये पहला ऐसा इदारा है जहां पर 300 बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं बैक वक्त। ये बड़ी खुशी की बात है। और जो यहाँ जो बुनियादी तालीम है वो बहुत मजबूती के साथ बेहतरीन असतिज़ा किराम की निगरानी में दी जा रही है। और ये बुनियादी तालीम ही असल तालीम है। जब बुनियादी तालीम अच्छे से होगी तो बाद की जो तालीम होती है वो बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो बुनियादी मजबूत होना ज़रूरी है, और इन लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जामिया शाह साहब को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम।